our management member, guest members, headmistress, teachers, invited parents, and my dear students. Myself, Ansari Hina Kausar, Muhammad Aslam, and I welcome you all. You have made this occasion auspicious for us. As we all know that today we have gathered here to celebrate Azadi का अमृत महोत्सव. ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना. स्वातंत्र्याचा 75वा वर्धापन दिन साजरा करूया. शूर शहीदांचे स्मरण करून संघर्ष कथा पुन्हा सांगा. गेल्या 75 वर्षातील कामगिरीची गणना करूया. नवीन 75 संकल्प घ्या आणि प्रत्येक घरात तिरंगा फडकवा. या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी आपण आपल्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्याचा 75वा वर्धापन दिन एका उत्साहाच्या रूपात साजरा करत आहोत, ज्याचे नाव आहे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव. Dear students, one question arises in our mind why we are celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, this Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Narendra Modi's vision of activating India 2.0, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. मंगल क्षणिया निनादण्याचे भाग्य लाभले चौघड्याला. मंगल क्षणिया निनादण्याचे भाग्य लाभले चौघड्याला. आसमंत त्रिरंगानी नटले, आसमंत त्रिरंगानी नटले स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याला, स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याला. The official journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav commenced on 12th March 2021, which started a 75th week countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on 15 August 2023. तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है. यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है. 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है. Now, I would like to request our chief guest, Mr. Baliram Chaudhary sir, R.N. Gandhi sir, to come on the stage for flag hosting, and we request other members to come and join flag hosting ceremony. Have a big round of applause.
Our SEHS student will present PT drill in front of you. So all of you give a big round of applause. Extra. Saga. श्रीकांत सर अंदर जाओगे ऊपर चले Now student, one more PT drill is performed by our students. Extra. Saga. जाने
Thank you students for your hard work. It was a wonderful PT drill presented by our students. Have a big round of applause. On the occasion of Independence Day. Before starting my speech, I would like to share one slogan to you. ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, दिल में बसाए रखना। We celebrate Independence Day as a national festival of India. The day marks the anniversary of national independence from British Empire on 15th August 1947. Furthermore, it is the most auspicious and significant day for all Indian freedom fighters. People were the slaves of the Britishers for many years. India became independent because of the hardships done by our freedom fighters for many years. India became independent because almost in all the fields such as transportation, business, sports, etc. because of our struggles of our forefathers. आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा हमारी यह पहचान है। The entry of British East India Company on 16th century marked the beginning of the British Empire, and it was ended on 15th August 1947. Immediately after the Mughal rule in India and the Britishers took over the control of Britishers, and it was India witnessed the 200 years of barbaric and the atrocities. Thank you. Thank you, Muskan, for giving a wonderful speech. ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले, ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले, शूर भारतीय वीर फक्त देशासाठी लढले, फक्त देशासाठी लढले. Now I am requesting Priyanka Nikam from Standard 8 to come on the stage and give the speech. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय प्रमुख पाहुणे, अध्यक्ष, शाळेची मुख्याध्यापिका आणि इथे जमलेले माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आज 15 ऑगस्ट या निमित्ताने आज आपण इथे भारताचा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करण्यासाठी जमलेलो आहोत. सर्वप्रथम सर्वांना या मंगलमय दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी ज्या महान नेत्यांनी, क्रांतीवीरांनी ब्रिटिशांशी लढून आपल्याला स्वातंत्र्यता मिळवून दिली, अशा सर्वांना वंदन करून मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करते. मित्रांनो, भारत या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे का? तर भा म्हणजे तेज आणि रथ म्हणजे रममान झालेला, तेजात रममान झालेला असा देश म्हणजेच भारत होय. आपल्या भारत देशामध्ये सर्व जाती धर्मांची लोक एकजुटीने राहतात. त्यामुळे आपला देश सर्व धर्म समभाव असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, अशी प्रतिज्ञा आपण गर्वाने करतो. ही प्रतिज्ञा आज आपण हक्काने म्हणू शकतो, कारण आपल्या महान नेत्यांनी, क्रांतीवीरांनी ब्रिटिशांशी लढून आपल्याला स्वातंत्र्यता मिळवून दिली. शेवटी मी एवढंच म्हणते, स्वातंत्र्यवीरांना करूया शतशत प्रणाम. त्यांच्या निस्वार्थ त्यागानेच भारत बनला महान. या तिरंग्याला वंदन करून मी माझं भाषण इथे संपवते. थँक्यू. खूप छान प्रियांका, तू तुझे विचार चांगल्या पद्धतीने मांडले. धन्यवाद. भारत की पहचान हो तुम, जम्मू की जान हो तुम, सरहद का अरमान हो तुम, दिल्ली का दिल हो और भारत का अभिमान हो तुम. Now I would like to call on the stage Goldie Verma from 10A to give the speech on this occasion. Goldie Verma. A very good morning to all. A very good morning to all. Myself Verma Goldie. I am from 10th A. Today I am going to give a short speech on Independence Day. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है. 15 अगस्त 2022 आज़ादी का एक और नया सूर्योदय. आज हम जो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो सिर्फ उन स्वतंत्र सेनानियों की वजह से जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए. तो चलिए फिर से वो नज़ारा देखते हैं, शहीदों के जो दिल में थी वह ज्वाला देखते हैं. 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ झांसी की रानी और मंगल पांडे ने किया. अपने देश के लिए अपने
अपने प्राणों को निछावर कर दिया। उसके बाद भगत सिंह। 23 मार्च 1921 जब भगत सिंह को फांसी की सजा मिलने वाली थी, लेकिन उनके चेहरे पर इतना सा भी भय नहीं था। वो फांसी के सामने खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी को चूमकर फांसी स्वीकार कर और अपने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। उसके बाद चंद्रशेखर तिवारी, जब वो जेल में थे तब उनसे एक मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपना पता जेल बताया। यह कहने के बाद उन्हें 15 कोड़े खाने की सजा प्राप्त हुई, लेकिन उनके मुंह से एक भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं निकली। सिर्फ एक आवाज़ निकली, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें IAS की नौकरी प्राप्त हुई, लेकिन ये नौकरी उन्होंने इनकार कर दी। कहा कि मैं अंग्रेजों के लिए कार्य नहीं करूंगा। फिर ऐसी सेना तैयार की जिसने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया। फिर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाचा नेहरू, इन्होंने बिना अहिंसा और हथियारों की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को अपना देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। अरे यह तो वो देश था जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जाना करती थी, लेकिन अब वही सोने की चिड़िया कुछ बुराई के पिंजरे में कैद है। जैसे आज हम कुछ ज्यादा पैसों के लिए किसी और देश में जाकर काम करना चाहते हैं, अपनी ही मातृभाषा हिंदी को बोलने में कतराते हैं, अपनी संस्कृति के कपड़े छोड़कर दूसरे के कपड़े पहनना चाहते हैं। लेकिन अब यही वक्त है बदलाव का। तो चलिए आज हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हम उन सत्येंद्र सहनानी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो सपना देखकर वो देश हमारे हाथों सौंप गए थे, वो सपना हम मिलकर पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थँक्यू गोल्डी. नाजूक पाकळ्या किती सुंदर असतात, नाजूक पाकळ्या किती सुंदर असतात, रंगीत कळ्या रोजच उमलत असतात. नजरेत भरणारी सर्वच असतात, पण हृदयात राहणारी तुमच्यासारखी माणसं फार कमी असतात. आणि तुम्ही आम्हाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेत, त्याबद्दल आमचे भाव. We are very grateful to be blessed with such honorable guests, parents and students on this beautiful occasion. Here we are ending our program and I request all students to gather in the classroom for competition, and I am requesting the guest management members to gather in office. Thank you very much for your presence. Thank you.